Matthew chapter 18 verse 1 to 4. मत्ती 18 उसका 1 से 4। At that time the disciples came to Jesus saying, "Who then is greatest in the kingdom of heaven?" And he called a child to himself and set him before them. And he said, "Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you shall not enter the kingdom of God, kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven." उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Jesus said, well, the disciples came to Jesus and asked this question, who is the greatest in the kingdom of God? और यीशु के चेलों ने यीशु के पास आकर उससे ये प्रश्न पूछा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा? So the disciples were just like us, who is the richest man in the world? Like we also ask, who is the best, most good-looking person? Who's the best singer? Who's the best actor? We also they are like also to get who's the best person. और जिस तरह से हमें भी कई बार ऐसे प्रश्नों का उत्तर अच्छा लगता है सुनने के लिए कि इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है या सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, उसी तरह से चेले भी आकर यीशु मसीह के पास इसी समान के प्रश्न पूछ रहे थे। And since the disciples asked about heaven, Jesus gave them the answer. और क्योंकि चेलों ने स्वर्ग के बारे में ऐसा एक प्रश्न किया, तो यीशु ने जरूर वहाँ पर एक जवाब दिया। Because when they were living this earth, they knew that they were living in the Roman Empire. The Roman emperor was the greatest in the that Roman empire. और उस समय में जब ये लोग जहाँ पे जी रहे थे, वहाँ पर रोमियों का जो राजा या उनका जो राज चल रहा था, वो सबसे महान राज था तब के समय में। Then they also wanted to know who in heaven how will it be. तो इसलिए वो जानना चाहते थे कि यदि पृथ्वी में ऐसा है, तो स्वर्ग में कौन सबसे महान होगा? Then Jesus answered the question. और फिर यीशु ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। And he called a small child to them. और उन्होंने उनके बीच में से एक छोटे से बच्चे को बुलाया। He was only calling the disciples. और अपने चेलों के बीच में से बुलाया उसने। And he set them before him. और फिर उस बच्चे को उनके सामने खड़ा कर दिया। And he said, truly, means really, this is the most important thing. Unless you are converted and become like children, you shall not enter the kingdom of heaven. और फिर वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बच्चों के समान न बन जाओ, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। If you want to enter God's kingdom and you enter the presence of Jesus Christ, you have to become like converted and become like a little child. और यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो या यदि तुम मसीह के समान बनना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है कि तुम मन फिराओ और छोटे बच्चों के समान तुम्हें बनना है। He was telling the disciples to get converted. और ये बात यीशु मसीह के चेलों से कह रहे थे कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। Earlier when they used to ask me, some people used to ask me, are you Christian? Are you a convert Christian? और पहले जब कोई मुझसे आकर ये प्रश्न पूछते थे, क्या तुम परिवर्तित मसीह हो क्या? That means they think that a different thing that you come from some other religion. मतलब वो ऐसे सोचते कि परिवर्तित मसीह होना मतलब किसी और धर्म से आना। I said no. I was born as a Christian. My Christian family. अब देखिए मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं तो एक मसीह परिवार में ना जन्म हुआ है। But Jesus said, unless you get converted, you cannot enter the kingdom of God. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। And once you become a disciple, you also have to get converted. और तुम एक चेले बन जाने के बाद भी जरूरी है कि तुम्हारा मन फिराना होना है या परिवर्तित होना है। To remain in the kingdom of God, you have to get converted every day. और परमेश्वर के राज्य में हर एक दिन बने रहने के लिए जरूरी है कि हर एक दिन हम जो है मन फिराते रहना है। To get converted means to have a repentant attitude. और मन फिराने का मतलब है कि हमेशा जो है पश्चाताप में जीते रहना है। My mind should be changed, my actions should change. मेरा मन जो है, मेरे विचार बदलना है, मेरे जो काम के कार्य है वो बदलने हैं। And what should change? Verse 4 he said, और आगे वचन के 4 में लिखा है कि और क्या बदलना है? whoever then humbles himself as his child, he is the greatest in the kingdom of heaven. और जो कोई भी अपने आप को इस बच्चे के समान नम्र कर देता है, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। You cannot come to God in the kingdom of God, in the church, with a proud attitude. और तुम परमेश्वर के राज्य में उसके कलीसिया में घमंड की मनोवृत्ति या मनसा को रखकर तुम नहीं आ सकते। You have to have a humble heart. जरूरी है कि आपको मन में नम्रता रखना है। All proud people go to hell. और सारे घमंडी लोग नरक की ओर जाते हैं। Jesus said you have to humble yourself as a little child. और यीशु मसीह ने कहा कि छोटे बच्चे के समान तुमको नम्र बनना है।
A child has a humble attitude, और एक बच्चे का जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, बहुत नम्रता के साथ होता है। and we have to learn many things from a much small child. और हमें भी कई बातों को छोटे बच्चों से हमें सीखना है। And if you keep on humbling ourselves every day, और यदि हम हर एक दिन अपने आप को नम्र करते रहते हैं, then we become great in the kingdom of God. ऐसे करते रहने से परमेश्वर के राज्य में हम बड़े बन जाते हैं। And who is the greatest in the kingdom of God? और परमेश्वर के राज्य में सबसे महान कौन है? Who is the greatest human being who lived on the earth that is great, that is the greatest in the kingdom of God? और इस पृथ्वी में पैदा हुआ सबसे महान व्यक्ति कौन है जो स्वर्ग में भी महान है? General knowledge questions for all of us. और हमारे सभी लोगों के लिए जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। Who is it? कौन है वो? Jesus. यीशु मसीह। He humbled himself the most. और उसने सबसे ज्यादा अपने आप को उसे नम्र कर दिया। He was humble like a child. और एक छोटे बच्चे के समान अपने आप को नम्र कर दिया। How do you know how he humbled himself? आप कैसे जान सकते हो कि उसने अपने आप को नम्र कर दिया? Because whatever the heavenly Father told him, he did it. क्योंकि जो कुछ भी स्वर्गीय पिता ने उनसे कहा था करने के लिए, उसी को उसने वैसा ही किया। Many times we think to humble ourselves means to wear very simple clothes, और कई बार हम सोचते हैं कि अपने आप को नम्रता से व्यवहार करने का मतलब है कि बहुत साधारण कपड़े पहनना, not to wear any jewelry, और बहुत गहने नहीं पहनना, to talk very softly, बहुत धीमी आवाज से बातें करना, and to show a very pious face. और बहुत बाहरी तरह से बहुत ही पवित्रता का दिखावा करना। The Pharisees were like that, और फरीसी लोग बिल्कुल ऐसा ही करते but थे, they were very proudest inside. लेकिन भीतर ही अंदर बहुत घमंड रखते थे, They get very offended, very angry. और बहुत जल्दी से उनको ठेस पहुंचता और जल्दी से गुस्सा आता। Why do you get angry? आपको गुस्सा क्यों आता है? Why? Because of your pride. क्यों? क्योंकि आपके अंदर घमंड है। That shows how proud you are. और इससे हमें पता चलता है कि आप कितने घमंड हो। And because why you are proud? Because the middle word in pride is what? और आप घमंड Letter क्यों is? हो? क्योंकि आपका वो जो प्राइड का जो बीच का अक्षर वो कौन सा है? I. P-R-I-D. I is the cause of all the pride. और वो जो अक्षर आई है, मतलब हम खुद वो सारे घमंड का जो है वो मूलभूत है। Jesus said, you just humble yourself. यीशु मसीह ने कहा कि तो अपने आप को नम्र कर दो Then you will truly become great. और तुम सचमुच में बड़े बन जाओगे। And then our pride, we have to cleanse ourselves every day. और हम जो है हर एक दिन अपने आप को अपने घमंड से अपने आप को शुद्ध करना है। Selfishness and pride are fixed in our lives and deeply in our और lives. हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में घमंड और स्वार्थीपन का जो जीवन है बहुत अच्छी तरह से वो गहरा गया। And we only come to know with our interaction with our brothers and sisters and our homes and our office work. और इस बात को हम तभी एहसास कर पाते हैं जब हम लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है उसमें हमको पता चल जाता है। And the Lord says, be like a child. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम एक छोटे बच्चे के समान बन जाओ। You humble yourself. अपने आप को तुम नम्र कर दो। When you humble yourself, God will lift you up. तो जब तुम अपने आप को नम्र करते हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। Your duty is to humble yourself. तुम्हारा ये जिम्मेदारी है कि अपने आप को नम्र कर दो। God will raise you up. परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। God will exalt you. परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। God cannot exalt me because I don't humble myself. परमेश्वर तब तक मुझे ऊंचा नहीं उठा सकता जब तक कि मैं अपने आप को नम्र कर दूं। My business is to humble myself. लेकिन मेरा सिर्फ यही काम है कि अपने आप को मैं नम्र करते रहूं। Sisters and all sisters and wives, please humble yourself. और सारी जो बहनें हैं, सारी जो पत्नियां हैं, कृपा करके अपने आप को नम्र कर दें। God will take up your matter. परमेश्वर आपकी जो बातें हैं, आपकी जो परेशानी है, उसे वो खुद झेल लेगा। All brothers and husbands should humble themselves. सारे भाई और सारे जो ब्रदर्स हैं और सारे जो पति हैं अपने आप को नम्र कर लें। And then God will exalt you. परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। God will be with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। God gives His help to always the humble. और परमेश्वर अपनी मदद जो है उसी व्यक्ति को देता है जो अपने आप को नम्र करता है। He resists the proud. और वो घमंड का विरोध करता है। And then you become great in the kingdom of God. और फिर ऐसे में हम परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बन सकते हैं। What does it become great in the kingdom of God? और परमेश्वर के राज्य में महान बनना, इसका मतलब क्या है? You become very close to the Lord Jesus. हम जो है यीशु मसीह के बहुत करीब आ सकते हैं। You'll have fellowship with Him. उसके साथ हम संगति में रह सकते हैं। The greatest in the kingdom of God is closest to God, Jesus Christ. जो व्यक्ति सबसे महान जो स्वर्ग में है, वो वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के बहुत सबसे करीब है। When Jesus was on the earth, और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, the 12 disciples were very close to Him. और उसके जो 12 चेले थे वो उसके बहुत करीब थे। They humbled themselves. उन्होंने अपने आप को नम्र कर दिया। And even among the 12, और उन 12 के बीच में भी there were 2 or 3 who were very, very close to the Lord. उनके बीच में 2 या 3 ऐसे चेले थे जो और करीब थे यीशु के साथ। Jesus didn't have special favorites. यीशु मसीह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। They were Peter, John and James. वहाँ पर पतरस, यूहन्ना और याकूब थे। And even among these 3, और उन तीनों के बीच में भी John was the closest. और यूहन्ना जो है वो सबसे अधिक और करीब था। He used to lean on Jesus' breast and say, Jesus, what is this? और वो जो है यीशु के छाती में सोते हुए उनसे बातें करता था। Because he was such a humble man. वो इतना नम्र व्यक्ति था।
He's the one who wrote the letters wrote Revelation. और वही व्यक्ति है जिसने प्रकाशित वाक्य के पत्रियों को लिखा था। He wrote the Gospel of John. उसने यूहन्ना की सुसमाचार की पत्री को लिखा था। 1 John, 2 John, 3 John. और पहला यूहन्ना, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री। Before he became humble. और उस अपने आप को नम्र कर दिया। Before initially they were known as sons of thunder. और उसके पहले तो वो थंडर के बच्चे जाने जाते थे। Thunder, what do you say in Hindi? बिजली के हाँ? गरज कड़कड़ाहट जब बिजली के बच्चे जाने They were people who shout and fight and say they are like like gundas. और वो लोग ऐसे होते थे जो चिल्लाकर झगड़ा करते थे, ऐसे जाने जाते थे जैसे कि वो गुंडे हैं। James and John. और याकूब और यूहन्ना। They said these people are not listening to us. Let them die. और वो ऐसे कहते थे कि ये लोग तो हमारी बात नहीं मानते, वो मर जाएं। Fire should come on heaven and consume them. और स्वर्ग से आग उतरकर उनको भस्म कर दे। This type of attitude they used to have. इस तरह की मनसा थी उनकी। They don't want to finish off people. और सभी लोगों को सिर्फ खत्म करना। They don't want to come to our group. Let them die. वो यदि हमारे साथ नहीं जोड़ना चाहते तो मर जाने दो। Jesus said, see, this is not the way to talk. अब यीशु ने कहा कि देखो ऐसे बातें हमारे मुंह से नहीं आनी चाहिए। And the Lord Jesus, because they saw Jesus, they got converted. और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तब उनका जो मन है वो बदल गया। And John was so close to the Lord. और फिर यूहन्ना इतना करीब था प्रभु के। When we come to the Lord, we are not humble people. जब हम परमेश्वर में पहली बार आते हैं तब हम नम्र लोग नहीं होते। We sure we have humbled ourselves and come into the kingdom of God. और जब हम अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के राज में आते हैं, But we have to come further down and humble ourselves every day. लेकिन हमें और दिन प्रतिदिन लगातार अपने आप को नम्र करते रहना है। Whenever God shows us something that is wrong in our own life, जब कभी भी परमेश्वर हमारे खुद के जिनमें गलतियों को या कमी घटियों को दिखाता है, we will humble ourselves and give glory to God. और हमें अपने आप को नम्र करना है और परमेश्वर को महिमा देना है। We saw in the 1 Corinthians, हमने पहला कुरिन्थियों में देखा है chapter 5. पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। The Corinthians were constantly boasting. और कुरिन्थी लोग ऐसे थे जो हमेशा खुद के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते थे। What a nice fellowship we have. और वो घमंड करते थे कि हमारा कितना अच्छा एक सहभागिता है। See how much, see the word of God, all prophecy is coming every now and then. कितनी अच्छी-अच्छी वचनें हमारे बीच में से आती हैं, कितना बड़ी-बड़ी भविष्यवाणी हमारे बीच में होती है। We are speaking in tongues, there is interpretation of tongues, हम अन्य भाषा में बोलते हैं, उस अन्य भाषा को उसका अर्थ बताते हैं। there is healing, हमारे miracles, बीच में चंगाई होती है, अद्भुत बातें होती हैं। all sort of things are there. और ये सारी बातें हमारे बीच में होती हैं। They were so happy with the gifts of the Spirit. और आत्मा के वरदान को लेकर बहुत खुश थे वो लोग। But then there was all sort of serious sin in their midst. लेकिन उसी के साथ-साथ उनके बीच में बहुत ही गंभीर तरह के पाप भी मौजूद थे। The Apostle Paul said there was such immorality that they were not there among the unbelievers. और पौलुस कहता है कि जिस तरह की उनके बीच में गंदे काम होते थे वो तो अविश्वासियों के बीच में भी नहीं होता था। And there was lots of infighting. और उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते And there was a lot of greed. और बहुत लोभ होता था। You know, the Apostle Paul said when they came for breaking of bread, और प्रेरित पौलुस ने कहा कि जब वो रोटी तोड़ने आते थे and then it was a big long meeting, और फिर वो बहुत ही लंबी सभा होती थी and all the rich people used to bring their food, और वहाँ पे जो बहुत ही रईस लोग थे अपना खुद का खाना लेकर आते and थे there were poor people also used to come. और उनके बीच में गरीब लोग भी आते थे And the rich people and all of them used to make a little group and they used to have the food together. और वो जो रईस लोग थे वो अपने खुद के एक झुंड बना लेते थे अपने बीच में ही बैठकर रईसों के बीच में ऐसे खाना खाते And the थे। poor people had nothing to eat. लेकिन वो जो गरीब वहाँ पे आते थे उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था See, this is they had their own little groups and cliques. और वो उनके खुद के अपने खुद के झुंड में रहते थे छोटे See, छोटे झुंड में in the church there should be no groupism at all. और इसी तरह से कलीसिया के बीच में ऐसा कोई झुंड नहीं होना चाहिए There should be no Marathi group or Tamilian group or North Indian group or South Indian Tamil group or any other group. और ऐसा कोई भी मराठी ग्रुप या तमिल ग्रुप या नॉर्थ ग्रुप या साउथ ग्रुप ऐसा कभी एक झुंड नहीं होना चाहिए Or an educated group and an uneducated group. या बहुत ही पढ़े लिखे का एक झुंड होता है जो अनपढ़ लोग हैं उनका एक अलग से झुंड होता है ऐसा नहीं होना The चाहिए body of Christ does not consist of all these things. और मसीह का जो देह है इसमें ऐसी बातें नहीं होती We must love one another because the body, because he's a child of God. और हमें एक दूसरे से इसलिए प्रेम करना है क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे हैं God doesn't look at our education at all. परमेश्वर हमारे पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता If we cannot fellowship with the people who are at a lower status than us, something really wrong with और us. यदि हमारे बीच में बहुत ही गरीब स्थान पे जो रहते हैं उनके साथ यदि हम सहभागिता नहीं कर सकते तो जरूर वहाँ पे कोई गलती हो रही The है Apostle Paul corrected them for that. और इस बात को लेकर प्रेरित पौलुस ने उनको सुधारा But then whenever there is something wrong in our lives, the Holy Spirit comes and corrects और us. फिर जब कभी भी हमारे जीवन में कोई गलती होती है तो पवित्र आत्मा में
चिताता है और हमें बताता है। He said, "Do you not know a little leaven, verse 6, leavens the whole lump of dough?" और फिर वो ये कहता है कि तुम ये नहीं जानते हो कि थोड़ी सी खमीर जो है पूरे गूंदे में आटे को खट्टा बना देता है। You know what is leaven? Leaven is the one we put in bread. Yeast, we put in a little bread, and then afterwards, whole bread rises up. और तुम खमीर जानते हो कि वो जो यीस्ट है जो हम रोटी बनाने के वक्त यदि डालते तो जो आटा है वो उठ जाता है। A little bit is enough, just a half a spoon, थोड़ा सा खट्टापन है वो जो खमीर है वो काफी है। and the whole thing spreads all over the full bread. और वो जो खमीर है जो मिलाते हैं वो पूरी तरह से सारे आटे में जो है वो फैल जाता है। He said, "Clean out the old leaven, और इसलिए वो कहता है कि पुराने खमीर को निकाल दो that it may be a new lump. ताकि तुम एक नए गूंधा हुआ आटा बन जाओ। Don't have the old habits that you used to have before." और तुम्हारे बीच में जो पहली पुरानी आदतें थी, गंदी आदतें थी, वो अभी मत रखो। That is known as the old man, और उसी को कहते हैं पुराना मनुष्य। the old ways of living. और वो जो पुराने तरीके तौर तरीके जीने के। What are the old ways of living? और हमारे जीने के पुराने तौर तरीके कौन से थे? For men, what are they? पुरुषों के लिए क्या है वो? Interested in sex और वो लैंगिक बातों में रुचि रखना and interested in good food. और अच्छे खाने खाने में रुचि रखना। That is a great interest. और इसमें हमेशा बहुत चाव से वो करते These हैं। are the primary interests of men. और ये जो है भाइयों के बीच में या पुरुषों के बीच में सबसे मुख्य पाप होता है। Said this should not be the primary interest for you at all right now. लेकिन अभी वो यहाँ पर कहता है कि इस तरह की बातें अभी तुम्हारे नहीं होनी चाहिए। What are the primary interests for women? और स्त्रियों के लिए सबसे रुचि रखने वाली बातें क्या है? Eating good food, अच्छे अच्छे खाने को खाना going for shopping and here and there, और शॉपिंग करते रहना, यहाँ वहाँ खरीदी करते रहना and also keeping on topic, talking and gossiping. और लगातार बातें करते रहना और दूसरों के बारे में बातें करते रहना। See, if you don't stop all these things, they will interfere in your spiritual life. और यदि हम इन बातों को करना यदि नहीं छोड़ेंगे तो ये बातें हमारे आत्मिक जीवन में हमारे रुकावट हो जाएगी। The Corinthians did not do that, और कुरिन्थियों ने इस बात को नहीं माना। because that is why their behavior became worse than the unbelievers. और इसीलिए उनकी बाद में की जो बर्ताव थी अविश्वासियों से भी बढ़कर और बदतर हो गया। That is the condition of most of born again Christians in this world. In every city, the condition is so bad. Spiritual condition is very, very bad. और इसलिए आज के संसार अभी के समय में सारे मसीह जो जिनका नया जन्म हो चुका है इसी तरह से उनका हालत हो चुका है। Their interests are not on God, interests are on all the old things that they loved very much. और वो उनका रुचि जो है परमेश्वर के ऊपर नहीं है, लेकिन उनका पुराने मनुष्यत्व में जो पुरानी आदतें थी उसके ऊपर उनकी रुचि अभी भी बनी रही। And the Apostle Paul said, "Clean it out. और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि इन बातों को तुम्हारे बीच में से शुद्ध कर दो। Clean it, man. Just see that all this rubbish is taken out from your life." और तुम शुद्ध करने का मतलब है देख लो कि इन सारी बातों को तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हटा दो। He said, "I am a new creation in Jesus Christ. This is not for me. और मैं यीशु मसीह में एक नया सृष्टि बन चुका हूँ, अब ये बातें मुझ में नहीं दिखनी चाहिए। Making money is not my first aim. और पैसों बनाना ये मेरा पहला उद्देश्य नहीं My है। aim is to follow the Lord. मेरा उद्देश्य ये है कि मैं मसीह के पीछे चलूं। And we should not mix around with unbelievers because they will teach us all these ways. और इसीलिए हम अविश्वासियों के बीच में हमारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमें इन बातों को सिखाते हैं। Why? Because Christ, our Passover lamb, has been sacrificed for us. और क्यों? क्योंकि हमारा जो फसह का मसीह है वो हमारे लिए बलिदान हो चुका है। Jesus is our Passover lamb. और यीशु मसीह हमारे लिए जो फसह का मेमना है। He has died for your sins and my sins. वो आपके पाप के लिए और मेरे पाप के लिए मर चुका है। He should not die for us again. All these past sins. और हमारे इन पापों की वजह से वो फिर से मरना नहीं You है। must say, "Lord, I want to be finished with all my past sins completely. और इसलिए हमें परमेश्वर से कहना है कि मेरे सारे बीते हुए पापों को मुझे पूरी तरह से निकाल देना है। All my old habits, old friends are all gone away. और मेरे सारे पुराने आदतें और मेरे सारे पुराने दोस्त जो है सारे निकल चुके हैं। All my old associations and old ambitions. और मेरे सारे पुराने जो मकसद है और पुराने बीते हुए लोगों के साथ जो मेरा उठना बैठना था सारा निकल गया है। Now I want to live for Jesus. अभी मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। I am going for a job to live for Jesus अभी Christ. मैं यदि एक नौकरी के लिए जाता हूँ तो उसी मसीह के लिए जीने के लिए जाता हूँ। I am doing my work at home to live for Jesus और Christ. यदि घर पे मैं जो काम करती हूँ या करता हूँ मसीह के लिए जीने के लिए मैं करता हूँ। And Jesus Christ should be the first person in our own life. और इसलिए हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान जो है यीशु मसीह को देना है। And then he said, "Let us celebrate the feast." और इस बात में वो कहता है कि हम उत्सव को आनंद मनाएं। The breaking of bread is a feast for us. और ये रोटी का जो तोड़ना होता है वो हमारे लिए उत्सव के समान होता है। He said, "Let us break bread not with the old leaven." और फिर वो कहता है कि हम पुराने खमीर के साथ इस रोटी को ना तोड़ें। See, we must not break bread with all our bad habits in our और lives. हमारे जीवन में पुराने आदतों को बुरे आदतों को रखते हुए इस रोटी को नहीं तोड़ना The चाहिए। Corinthians were breaking bread with all immorality and fighting and all these things in their life. और कुरिन्थ की जो कलीसिया के लोग थे सारे गंदे व्यभिचार बातें झगड़ा करते हुए भी
भी वो इस रोटी को तोड़ते थे। And because of that, they were not recognized the body of Christ. The lot of them were getting sick and weak. और इसी के वजह से वो परमेश्वर मसीह के जो देह थे वो जो पहचान में नहीं आ पाए और इसलिए उनके बीच में बहुत सारे लोग जो थे बीमार हो गए। They were not honoring the Lord. और वो परमेश्वर का आदर नहीं करते थे। Says, let us not celebrate the leaven with an old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness. इसलिए न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। There is also a leaven known as of hatred and wickedness. और वहाँ पे एक और खमीर के बारे में जिक्र किया है, वो जो है नफरत और दुष्टता। But with unleavened bread of sincerity and truth. परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ। We should have always be sincere and true. और हमेशा हमें सिधाई से और खराई से चलना चाहिए। Whenever God tells us something, say, "Yes, Lord, that is right, that is sincere, and there should be true." और जब कभी भी परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हमें कहना कि हाँ प्रभु ये सही है, यही सच्चाई है, यही खराई है। We should not be insincere. हमें वहाँ पे बिना खराई के साथ नहीं चलना चाहिए। That is happened inside our heart. और ये बातें जो हमारे दिल के अंदर होती है। And it also be truthful. हमेशा हमें सच्चाई से रहना है। And the Holy Spirit speaks something that be truth in our hearts. और जब कभी भी पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है तो हमारे दिल में वो सच्चाई होती है। So we must always celebrate when we come together with the spirit of sincerity and truth. और इसलिए जब कभी हम एकत्रित होते हैं तभी उसे एक उत्सव के समान सच्चाई के साथ खराई के साथ उसे मनाना चाहिए। We should not be cunning type of people. और हमें जो है बहुत ही चतुराई से नहीं रहना चाहिए। We should not have something in our heart and say pretending that we are doing something right. और हमें दिल में कुछ और बाहर कुछ और ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहिए। Judas was like that. यहूदा ऐसा था। He pretended he was a disciple, but inside he had other motives. और उसने ऐसे बाहरी तरह से दिखाया कि वो यीशु का चेला है, लेकिन अंदर उसकी नीयत बहुत खोटी थी। But the Lord says the other disciples were not like that. लेकिन बाकी के जो चेले थे वो ऐसा नहीं थे। Jesus told them while breaking of bread, और जब रोटी तोड़ रहे थे तब यीशु ने उनसे कहा, "One of you all are going to betray me today." तुम में से एक जो है वो मुझे त्यागने वाला है। And what all the other disciples said? और बाकी के चेलों ने क्या कहा? They said, "No, it is not me." उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ। They asked the Lord, "Is it me, Lord?" फिर उन्होंने यीशु से पूछा कि क्या वो मैं हूँ प्रभु? They knew that they had this weakness in their own life. वो जानते थे कि उनके अंदर ये निर्बलता थी। They knew in the past they were doing all sorts of thinking bad things. और वो जानते थे कि बीते हुए दिनों में उनके भूतकाल में वो ऐसे सारे बुरे काम करते थे। So if we are a child of God, we will say, "Yes, Lord, there are a lot of things wrong in my life, but I hope it is not me, Lord. Please, is it me, Lord?" इसलिए यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, खराई से चलते तो हम भी परमेश्वर से कहेंगे कि हाँ बीते हुए दिनों में मैंने बहुत सारे बुरे काम किए, पाप किए, हो सकता है कि मुझसे भी ये संभावना हो सकता है, क्या मैं हूँ क्या वो प्रभु? They try to search their own lives. वो अपने खुद के जीवन को जांच में परखने लगे। And then they said, "I don't think it is, but maybe something I'm doing that is wrong." और फिर वो सोचने लगे कि ये शायद नहीं होगा, लेकिन शायद ही मुझसे ऐसे पाप हुआ हो जिसकी वजह से ये मुझसे संभव हो सकता है। Sometimes when we speak behind other people's back and speak evil, then we hurt the Lord. जब हम कई बार हम जो दूसरे लोगों के बारे में पीछे बातें करते हैं, दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, ऐसे में हम परमेश्वर को दर्द चोट पहुंचाते हैं। They are small sins. ये छोटी-छोटी पाप होती है। If we listen to gossip of other people, then what happens? It affects us. और जब हम दूसरों के बारे में जो बुरी बातें हम सुनते हैं, इससे हमको चोट पहुंचती है। Even in the English, there is a word known as juicy gossip. और अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि पूरा रस वाला जो है दूसरों के बारे में बातें करना। To listen to all that becomes very interesting. और दूसरों के बारे में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। What is happening here? What is happening there? In this family, in this actress, and this actor, and this and that. This is not a gossip that goes on. The conversation that goes on. और यहाँ पे क्या हो रहा है? उस परिवार में क्या हो रहा है? इनके घर में क्या हो रहा है? यहाँ क्या उस अभिनेता के घर में क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसे सबके बारे में, सबके जीवन के बारे में हमको जानना पहचानना अच्छा लगता है। And what is gossip? और दूसरों के बारे में बातें करना, गपशप करना, इसका मतलब क्या है? It is not a gupshup. It is not idle talk. और ये जो है बेकार की बातें, व्यर्थ बातें। Whatever is not useful to me, why should I listen? और जिन बातों से मुझे कोई लाभ नहीं होता, मैं उसे क्यों सुनूं? The Bible says to flee immorality. और पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम व्यभिचार से भागो। Don't go to people who are gossiping. और जो लोग गपशप करते हैं उनके पास मत जाओ। Nowadays, earlier people used to go gossiping house to house. और पहले दिन के दिनों में हम देखते हैं कि लोग कैसे घर-घर में जाकर गपशप करते हैं। Especially older people, खास करके जो वयस्क हैं older ladies. और वयस्क स्त्री। Because what happened? All these children are married and they are quite grown up. अभी क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है।
And there are a lot of free time. और भी उनके साथ बहुत मुफ्त का समय होता है। And then they go from house to house. और फिर खाली समय में वो घर घर में जाते हैं। And they tell this story here and that story there. और फिर वो यहाँ की कहानी को वहाँ बताते हैं, वहाँ की कहानी को उस तरफ पे बताते हैं। And because they keep on talking such a lot, they add their own masala inside. और फिर वो वहाँ पर लगातार बातें करते रहते हैं, इसलिए उसमें अपनी मसाला भी मिला देते हैं। And because of the all lot of negative things also we hear. और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी गलत बातों भी हम सुनने में आता है। The Bible calls them little devils. और पवित्र शास्त्र में छोटे शैतान होकर Because बुलाता है। the devil likes to go here and there. क्योंकि शैतान को पसंद है यहाँ वहाँ जाना। You know, the devil keeps on roaming around here and there. तुम जानते हो कि शैतान यहाँ वहाँ घूमते रहता है। When he came to the Garden of Eden, he came to speak to Adam and Eve. और जब वो अदन के बगीचे में आया था, तभी वो आदम और हव्वा के साथ बात करने आया था। Instead of speaking to Adam, he came to speak to Eve. लेकिन वो आदम से बात करने के बजाय वो जो जाकर हव्वा से बात किया। Has God said like this and had this very sweet talk? बहुत ही मीठी मीठी मधुर बातें कर रही है। क्या परमेश्वर ने सचमुच में ऐसे कहा है? And Eve fell for it. और इस बात के चपेटे में हव्वा आ गई। And then we also become agents of the devil. और फिर ऐसे में हम भी जो है शैतान के कार्यकर्ता बन जाते हैं। When we speak evil and bad things about other people. हम दूसरों के बारे में बुराइयां बातें करते हैं। And then we defile ourselves and defile other people. और फिर ऐसे में अपने आप को हम अशुद्ध करते हैं, दूसरों को भी अशुद्ध करते It may be a small thing. हैं। ये शायद बहुत छोटी बात होगी। Nowadays we have it in the mobile. अभी तो हमारे पास मोबाइल फोन्स भी हैं। Just keep on talking and talking and talking. लगातार फोन में लगातार बातें करते रहते हैं। Such a lot of talking goes on. इतना सारा बात होता रहता है। And such a lot of sin. और कितना अधिक पाप। We don't talk about brother, sister, have you been freed from sin? We don't talk. We talk about all different topics. हम फोन में भी या एक दूसरे से बात करते हैं, ये नहीं बात करते कि क्या भाई आप पाप से छुटकारा पाए या बहन छुटकारा पाए, लेकिन बाकी सारे बातों के बारे में हम बातें करते And हैं। because of that, sin comes to our life. और ऐसा करने से पाप हम में प्रवेश करता है। And all the freshness goes away. और हमारी जो ताजगी है वो चला जाता है। Our fellowship with the Lord gets और lost. परमेश्वर के साथ का जो सहभागिता है वो टूट जाता है। And what should we do? फिर ऐसे में हमें क्या करना Must है? ask God forgiveness. हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है। Cleanse it out. और पूरी तरह से हमें शुद्ध करना है। Say, Lord, I want to clean out everything in my own life. और प्रभु मुझे सारी बातों से अशुद्धता से अपने आप को जीवन में छुटकारा पाना है। Only sin can bring a separation between you and me and God. और परमेश्वर और आपके बीच में सिर्फ पाप ही एकमात्र चीज है जो आपको अलग कर सकता है। Sickness cannot bring. आपको बीमारी परमेश्वर से अलग नहीं कर In सकता। fact, many times when people are sick, they draw closer to God. और कई बार हम देखते हैं कि जब लोग बीमार होते हैं वो परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। The Lord says, you clean your heart. परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दिल को साफ करो। All these small sins, ये सारी छोटी छोटी पाप जो हैं, these small sins can destroy our life. ये जो छोटी छोटी पाप है हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकता They can है। destroy fellowship. वो हमारी सहभागिता संगति को नष्ट कर सकता है। In the olden times, there was a disease called typhoid. और पुराने दिनों में है टाइफाइड ऐसा एक बीमारी होता था। And at that time, there were not good antibiotics to cure the disease. और उस समय में उस बीमारी को चंगे करने के लिए कोई दवाइयाँ नहीं थी। And because of that, people used to keep the typhoid germs in their body in the small place called gallbladder. और इसकी वजह से जो है वो जो बीमार व्यक्ति है उस कीटाणु को जो है वो उसके गॉल ब्लैडर में रहता था। So there was this lady known as Mary, who was a maid servant. और एक स्त्री थी, लड़की थी जो नौकरानी का काम कर रही थी। And she had suffered from typhoid. और वो टाइफाइड की बीमारी से वो पीड़ित थी। And she became better. और फिर बाद में दिनों के बाद वो चंगी हो गई। But then this typhoid germs used to come out through her intestines. लेकिन फिर भी वो जो कीटाणु उसके शरीर में थे वो इंटेस्टाइन से बाहर आ गए। And because she used to do housework, she used to give this typhoid germs to the different, while washing the vessels and making the food, she put the typhoid germs into all the food and all the vessels. और घर का सारा काम वो करती थी, इसके अंदर वो जो कीटाणु उसके थे वो सारे घर में जो चीजों को वो हाथ लगाती थी उनमें भी वो फैल जाता था। And wherever she used to go, that house used to get typhoid. और जहाँ कहीं पर भी वो जाती थी उस घर में वो टाइफाइड का बीमारी फैल जाता था। And then when people realized it, they used to call her Typhoid Mary. और फिर बाद में जब लोगों को इसको पता चला तो उन्होंने उसका नाम बदल कर उसको टाइफाइड मेरी ऐसा बुलाने लगे। So things like that, we can keep on be noted for people to spread all sorts of gossip and evil. Then we become Gossip Mary or gossip whatever they will call us. और इसलिए लगातार यदि हम उस बुराई को करते रहते हैं, उस पाप को करते रहते हैं, तो लोग भी हमें उसी नाम से जाने जाएंगे जिस तरह से टाइफाइड मेरी को जाने जाते थे। Instead of encouraging one another, we'll always be bringing death into the lives of people. और लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय हम जो
काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के जीवन में मरण आ जाएगा। The Lord says, do you not know they are the temple of the Holy Spirit? और फिर परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि आप नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? No, Jesus, why we are so sacred to God हम is परमेश्वर के लिए क्यों इतने पवित्र ठहरते हैं? because Holy Spirit dwells in us. क्योंकि हमारे भीतर जो है पवित्र आत्मा वास करता है। Don't defile the temple. तुम इस मंदिर को अशुद्ध मत We should करो। always be holy. हमेशा हमें पवित्र रहना There should be no sin in our life. हमारे जीवन में कोई पाप नहीं That's है। every day we have to clean our life. और इसलिए हर एक दिन अपने आप को शुद्ध करना है। Do you get dirty every day? क्या आप हर एक दिन गंदे हो जाते हैं? Yes, we do get dirty. हाँ, हम जरूर गंदे हो जाते हैं। We have to clean it तो ourselves. हमें अपने आप को शुद्ध कर लेना है। We'll always do that in our body. और जब हमारे शरीर में हम गंदे मैले हो जाते हैं तो हमेशा अपने आप को साफ कर लेते हैं। Suppose we come to the meeting and suddenly we fall into the gutter. और यदि हो मान लो कि हम मीटिंग में आ रहे हैं तो आते वक्त हम गटर में गिर जाते हैं। We'll try our level best to clean ourselves and wash it. और हम यही कोशिश में रहेंगे कि जितना हो सके अपने आप को साफ सुथरा We won't come here in the meeting and sit with the dirty legs and dirty pant. और उस गटर में गिरे हुए कीचड़ को लेकर हम आकर कलीसिया के बीच में नहीं We'll बैठेंगे। try our level best to wash and remove all the dirty smell. और हमारी यही पूरी कोशिश होगी कि जितना हो सके वो गंदी बदबू को हमसे वो दूर कर दे। That is why same thing in our Christian life. और इसी तरह से हमारे मसीह जीवन में भी होता है। When we go around in this world जब हम इस संसार में यहाँ वहाँ जाते हैं and deal with so many और people इतने लोगों के साथ हमारा उठना बैठना बर्ताव होता in है। our office, in our workplace, in our home, everywhere, हमारे काम की जगह पे, नौकरी की जगह पे, घरों में, सब जगह पे we tend to become dirty. कई बार हम जो है गंदे हो जाते हैं। So when we ask God, Lord, please forgive me, cleanse me, Lord, I had this bad attitude to my life. I spoke this bad word. और इसे झट से हमें करना है कि परमेश्वर मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर, मैंने ऐसे गंदे मनसा को रखा है, मुझे माफ कर दे। I want to keep my life clean. मैं अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहता हूँ। Because if we are not clean, then we cannot have fellowship with the Lord. क्योंकि यदि हम शुद्ध नहीं होंगे तो परमेश्वर के साथ संगति में नहीं रह सकते। We are defiling the temple of God. हम ऐसे में परमेश्वर के मंदिर को जो है अशुद्ध करते हैं। And if we have a lot of sickness in our own life, we will also defer the spread sickness to other people. और फिर जिस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारी होगी तो दूसरों को भी हम उस बीमारी को फैला देंगे। The church is the body of और Christ. कलीसिया जो है मसीह का देह है। We should always be an encouragement to one another to be free from sin. और इसलिए हमेशा हमसे जो है दूसरों के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए कि हम पाप से छुटकारा पाए रहें। We should not keep on spreading wrong things so that to stumble other people. और हमें गलत बातें, झूठी बातें फैलाते नहीं रहना चाहिए जिस वजह से दूसरों के लिए उनके आत्मिक जीवन में एक रुकावट We should हो। encourage everybody to draw close to the Lord और Jesus. हम हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करते रहना है, उनको बताना है कि मसीह के और करीब तुम आ जाओ। Are you clean, brother and sister? क्या आप शुद्ध हो भाई और Have you taken a bath? The blood of Jesus Christ will cleanse you from all sin. क्या आपने स्नान किया है? क्या यीशु मसीह के लहू आपके सारे पापों से आपको शुद्ध कर देगा? How can you be clean? आप किस तरह से शुद्ध हो सकते हैं? Tell your sin to the Lord. आपके पाप के बारे में आप मसीह को कबूल कर दो। Lord, you can see my heart through and through. और प्रभु तू मेरे हृदय को पूरी तरह से देख सकता है। That is the cause of all my sickness. और इसी के वजह से मेरी सारी बीमारियां मुझ में आ चुकी हैं। That is the cause of all my sadness and gloom and lack of और peace. इसी की वजह से मेरे जीवन में इतना उदास हूँ मैं और इतनी सारी जो शांति को खो चुका हूँ। Lord, I am a sinner. Please forgive me. हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। Cleanse me, Lord, from my sin. मुझे मेरे पापों से तू मुझे शुद्ध कर दे। When you say sincerely from your heart, the sin goes away. और खराई के साथ तुम दिल से तुम इस बात को कबूल करते हो तो वो पाप तुमसे छूट निकल And जाता the है। joy comes in. और फिर आनंद प्रवेश कर जाता है। Love comes in. प्रेम आ जाता है। And then we become like little children. और फिर हम छोटे बच्चों के समान बन And जाते we हैं। become a blessing. और फिर दूसरों के लिए आशीष बन जाते हैं। Everybody likes little children. और सभी लोग छोटे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। If you see a small child, और जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, you will feel like carrying the child. आपको यही लगेगा कि हाँ मैं इस बच्चे को उठा You like smiling at the child. और आपको उस बच्चे को देखकर मुस्कुराना अच्छा The child is so humble. वो बच्चा कितना नम्र है। But adults are not so humble. लेकिन वयस्क लोग जो है वो नम्र नहीं होते। And Jesus said, unless you become like little child, you will not enter the kingdom of God. और इसलिए यीशु ने कहा कि जब तक तुम एक छोटे बच्चे के समान नहीं बन जाते तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Humble people have very good fellowship. और नम्र लोग जो है हमेशा अच्छी संगति में रहते हैं। Proud people have no fellowship at all. और घमंडी लोग जो है कभी किसी संगति में नहीं रह सकते। They think too high of वो themselves. अपने बारे में खुद के बारे में बड़ी-बड़ी ऊंची सोच रखते हैं। They are so stiff and dignified. बहुत ढिठाई के साथ अपने खुद को बड़ी ऊंचे स्थान में रखते हुए रहते हैं। You know, when people join a job, new job, और जब कोई व्यक्ति नए काम पे लग जाता है all the young boys, और वहाँ पे जो छोटे नौजवान होते हैं so many of them join the BPOs and this and that. वो जब बीपीओ में यहाँ वहाँ नौकरी में लग जाते हैं All of them have very little pride. उनके लिए उनका घमंड थोड़ा घमंड होता है। कम होता है. कम होता है। They all laugh and joke and they are all having a good time when they talk. और वो जो एक दूसरे के
के साथ बैठते हैं तो उनकी जो संगति में बहुत हंसी मजाक होता है, अच्छी तरह से समय बीतता है। But as they get promoted in the same department लेकिन जैसे जैसे उनकी उसी डिपार्टमेंट पदोन्नति हो जाती है and they become the chief, और फिर वहाँ पे जो मुख्य बन जाते हैं, then all the laughing and joking and they become less. तो जो मौज मस्ती मुस्कुराना सब कम हो जाता है। If you've not seen it, just look at all your bosses. और यदि आपने इस बात को नहीं देखा तो तुम्हारे ऊपर जो मालिक या बॉस बैठा है उसे देख लो। Each one thinks they are very, very important. और ईच मुख्य जो हर एक जो व्यक्ति है बॉस है वो यही सोचेगा कि मैं सबसे मुख्य व्यक्ति हूँ। They want their opinion to be, their opinion is the most the right. और उनको यही लगता है कि उनका जो राय है वही सही है। They cannot, anybody talks bad about them, they get very angry. और यदि किसी ने भी उनके बारे में गलत कहा या बुरा कहा तो उनको बहुत झट से गुस्सा आता है। Among the boys, if they keep on, these same people who grow up, they become very angry, they become very proud. और यही व्यक्ति, यही लोग जो एक साथ मिलकर हंसी मजाक करते थे, उनमें से एक व्यक्ति जो मुख्य हो जाता है, अभी उसे गुस्सा आता है, घमंडी हो गया है। Jesus said, now you have become children of God. और यीशु ने कहा कि अभी तुम परमेश्वर के बच्चे हो चुके हो, You become disciples. तुम चेले हो चुके हो। Don't become proud of that. अभी इसको लेकर तुम घमंड मत बनो। You are what you are by the grace of God. तुम जो कुछ भी हो तुम परमेश्वर के अनुग्रह से हो। All glory should go to God. सारी महिमा जो है परमेश्वर को ही जाना चाहिए। And then we'll remain, always have a humble heart. और ऐसा करने से हमेशा हम जो है नम्रता में रहेंगे। And God shows us all the sin that is there in our own life we are prone to do. और जो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वो सारे पाप को बताता है जो जिसके संभावना में हम गिर सकते हैं। We can be compassionate and kind to other people. और हम दूसरों के प्रति हम जो है सहानुभूति जता सकते हैं। Jesus was the kindest and the humblest person. और यीशु मसीह सबसे नम्र और सबसे तरस खाने वाले व्यक्ति थे। Why are we going to the Lord Jesus all the time? और हमेशा हम यीशु मसीह के पास क्यों जाते हैं? He never did a single sin. क्योंकि उसने एक भी पाप नहीं किया। But he knows the temptations, the trials that each one of us go through. लेकिन वो बिल्कुल ये जानता है कि हम जिस भी कठिनाई से जाते हैं, परीक्षा से जाते हैं, उस सारी परीक्षाओं से वो वाकिफ है। He is tremendously merciful to us. और इसमें बहुत अधिक करुणा के साथ वो हमसे पेश आता है। Whenever we come with our sin, he always forgives और us. जब कभी भी हमारे पाप को कबूल करते हुए आते हैं तो हमेशा वो हमें माफ करता He doesn't है। tell, this is the 1,000th time you're doing the same thing. वो कभी हमसे ये नहीं कहता कि बार-बार 1000 बार तूने ये पाप कर चुका है। You come, you clean yourself. वो कहता है कि तुम आ जाओ, अपने आप को शुद्ध कर लो। I love you, I want to have fellowship with you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे संगति में रहना I चाहता still हूँ। want the best for you. और अभी भी मैं तुम्हारे सबसे सर्वोत्तम चीज को चाहता हूँ। This is the love of God. इसी को परमेश्वर के प्रेम को कहते हैं। And that's why the Lord wants us to come closer to him. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और करीब आ जाएं। God is very good. परमेश्वर बहुत बड़ा And परमेश्वर है। we are very, very precious in his sight. और हम बहुत ही कीमती हैं उसकी नजरों में। We are so precious because we have been brought by the precious blood of Jesus और Christ. हम इसलिए कीमती हैं क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। You and I are the costliest people in this whole world. और आप और मैं जो हूँ इस पूरे संसार में सबसे कीमती लोग हैं। More valuable than all the Ambanis and all Bill Gates and everybody else. सारे अंबानियों से बढ़कर, सारे बिल गेट्स से बढ़कर अधिक हम जो है कीमती हैं। A child of God are the VVIPs of this world. और परमेश्वर का जो बच्चा है वो इस पूरे संसार में सबसे मुख्य व्यक्ति If you है। are a born again child of God, you are the VVIP of this और place. यदि तुम्हारा नया जन्म हो चुका है तो इस पूरे पृथ्वी में तुम VVIP You may हो। not look like that, but God considers you very, very important. और बाहरी तौर से शायद ये ऐसा नजर नहीं आता होगा लेकिन परमेश्वर तुम्हें बहुत ही कीमती होकर देखता है। Sometime back, I had gone by train. I met a pilot, fighter pilot, और कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में फाइटर पायलट से मेरी मुलाकात and he used to हुई। drive this fighter plane like this Sukhoi or Mirage and all that. और वो जो फाइटर प्लेन सारे जो वो उड़ाते थे And he used to be a young person. और बहुत ही जवान व्यक्ति था। I asked to ask him, what is the cost of these planes? तो मैंने उनसे पूछा कि ये सारे जो प्लेन्स हैं उनकी कीमत क्या होगी थी? He said that they are very, very expensive, so many thousands, many hundreds of crores. और उन्होंने कहा कि इसके तो बहुत ही दाम है, बहुत ही कीमती है, बहुत हजारों अरबों करोड़ों रुपए होते हैं। But he said, we pilots are more valuable than these planes. लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि इन सारे जो हवाई जहाज उड़ान फाइटर प्लेन्स हैं उससे भी अधिक कीमत है सारे पायलट जो उस हवाई जहाज को उड़ाते The government has invested so much money in our lives. और गवर्नमेंट ने, सरकार ने इतना सारा पैसा सारे पायलट्स या प्लेन उड़ाने वालों में निवेश किया है To train us. कि हमें वो प्रशिक्षण दे। They will say, it doesn't matter if the plane is lost, but your life should not be तो lost. वो ये कहते कि शायद जो विमान है, वो हवाई जहाज है, वो शायद नष्ट हो जाए, लेकिन वो जो पायलट है जो विमान को उड़ाता है वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। God is not interested in all your ministry and all the other things. God is more interested in you. परमेश्वर तुम्हारे सेवकाई में, बाकी के अन्य चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, वो तुम में दिलचस्पी रखता है। Yes, we are very precious in the eyes of हम God. परमेश्वर की नजरों में बहुत कीमती हैं। He is not interested in so much in your job or in your so many other earthly things. और तुम्हारे नौकरी
That He'll give it to you. That is not quite a small thing for Him. वो परमेश्वर के लिए बहुत छोटी बात है, वो सहजता से तुम्हें दे सकता है। He is interested primarily in having fellowship with you. लेकिन सबसे मुख्य बात परमेश्वर ये चाहता है कि वो तुम्हारे साथ संगति में रहे। And that you should draw close to Him. और कि हम उसके और करीब आ जाएं। And as close to Him as possible. और जितना अधिक हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। Cleanse our heart from all sin. और सारे पापों से अपने आप को शुद्ध करें। Have love to God and love for one another. और परमेश्वर के प्रति और भाई बहनों के बीच में भी हमें प्रेम में बने रहना है। And then God would have achieved as much of His purpose as possible in each one of our lives. और फिर परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे लिए हर एक व्यक्ति के लिए उसे अधिक से अधिक वो पूरा कर देता है। So let us come to the table of the Lord. इसलिए हम पवित्र मेज में आए। And this is one of the feasts that the Lord tells us to celebrate. और ये ऐसा एक उत्सव है जो परमेश्वर हमें आदेश देता है कि तुम उसे मनाओ। And the Lord says, when you break bread and this cup, drink this cup. और फिर परमेश्वर कहता है कि जब तुम ये रोटी को तोड़ते हो तब और लहू को पीते हो। So it is a cup of blessing. ये तुम्हारे लिए एक आशीष का कटोरा है। Because we come with a humble attitude. क्योंकि हम एक नम्रता की मनसा के साथ आते हैं। When we humble ourselves, जब अपने आप को हम नम्र कर देते हैं। Lord, I was nothing before I came and met you. हाँ, मसीह में तुम्हारे साथ मुलाकात होने के पहले मैं कुछ भी नहीं था। We humble ourselves and become like a little child. हम अपने आप को नम्र करके छोटे बच्चों के समान बन जाते हैं। And then we get God's grace and God's help. और फिर परमेश्वर का अनुग्रह और मदद हमें मिल जाता है। That is why breaking of bread is always a time of blessing. और इसीलिए रोटी तोड़ने का जो समय है हमेशा आशीष का समय होता Say, है। we are nothing, God is everything. और इसलिए हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। So as we break the bread, we say, Lord, I want to be broken every day. I want to humble myself. और जिस तरह से हम रोटी को तोड़ते हैं, हमें भी कहना कि मैं भी इसी समान हर एक दिन टूटना चाहता हूँ। And as we drink the cup, we say, thank you, Lord, for having suffered for me. और जिस तरह से जैसे हम कटोरे में से पीते हैं, हम कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे लिए कितना कष्ट सहा। Thank you, Lord, for having washed all my past और sins. धन्यवाद प्रभु कि मेरे सारे बीते हुए पाप को तूने शुद्ध कर लिया। And thank you, Lord, for cleansing me from all my daily sins. और धन्यवाद प्रभु कि मेरे रोजमर्रा की गलतियों से पापों से तूने मुझे शुद्ध कर लिया। Thank you, Lord, that I can have fellowship with you. और धन्यवाद प्रभु कि आप मैं तेरे साथ संगति में रह सकता हूँ। So as Heavenly Father, we thank you, Lord, that we come to you. और इस स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं जैसे हम आपके पास आते हैं। Thank you for Jesus that you came to die for each one of our और sins. धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जो हमें से हर एक व्यक्ति के पाप के लिए मरने के लिए We आया। are sinners saved by your grace. हम पापी हैं, तेरे अनुग्रह से शुद्ध किए गए हैं। We don't want to live in sin, Lord. हम पाप में जीना नहीं चाहते। You cleanse us from all our sin. हमारे सारे पापों से अधर्म से हमें शुद्ध कर दे। We want to be holy and blameless before you, और Lord, हम तुम्हारे सामने पवित्र और निष्कलंक होकर रहना चाहते so that we can have fellowship with you and with one another. ताकि हम आपके साथ और एक दूसरे के साथ संगति में रह सकते हैं। Amen. Those who are born again and have taken water baptism can take part in the breaking of bread. और जो लोग जिनका नया जन्म हो चुका है और जिनका पानी का बपतिस्मा उन्होंने लिया है, वो इस रोटी के तोड़ने के उत्सव में And those who भाग are ले सकते हैं। generally repented and have a spirit of repentance can come with the spirit of thanksgiving and praise. Say, Lord, I thank you that I come to take part in the breaking of bread and drinking the cup. और जो लोग लगातार अपने आप को पश्चाताप करके बदलते हैं, अपने आप को मन फिराते हैं, वो धन्यवाद के साथ आकर इस रोटी के मेज में भाग ले सकते हैं। We can sing a song.